know the life cycle of a star like sun? No? तो don't skip the video. We will discuss it in detail. तो यहाँ पर ये लाइफ 4 स्टेप्स में होती है. बर्थ, then main sequence, then old age, and after that it comes to death. So we will discuss from the birth to death. First step is a birthplace, that is nebula. So what is nebula? Star begin in a nebula. Nebula is a giant cloud of gas and dust. Gravity pulls the gas and dust together and forms a nebula. After nebula, the next step is a protostar. It is a forming of star. Nuclear fusion ignites here and star is born. If we detail discuss about protostar, it is a result of gravitational collapse of a nebula and it is a forming phase of a star. During this phase, infant star strives to gain equilibrium between its internal force and gravity. A protostar starts very vastly and it can be billions of kilometers in diameter, इतना बड़ा हो सकता है, and usually last for 1 lakh years. During this period, protostar spins very rapidly, generating intense heat and pressure and causing the gas cloud to collapse further. After this, the star forms. Then 2 types of stars should be there in the main sequence. First is low and medium sized star and the second is massive sized star. So the stars, most of their life is in main sequence stage. So the first is low and medium sized star. So in this, what happens if the star mass is less than 0.5 solar mass, then it will be a low sized star. These stars are smallest, coldest and dimmest stars of the universe. They burn red, orange and sometimes it also burn yellow due to their lower heat and they burn a fuel very slowly. इस वजह से इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 10 to 50 billion years. अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो Proxima Centauri is a low mass star. Then we will come to medium mass star, that is sun. है बिटवीन 0.5 to 3 सोलर मास और ये ऑरेंज एंड येलो बर्न होते हैं. इनका लाइफ स्पैन की बात करें तो अराउंड 5 to 15 बिलियन ईयर लाइफ स्पैन होता है. मीडियम साइज मास होते हैं, जिसमें अगर हम सन की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन होता है अराउंड 11 to 12 बिलियन ईयर्स, जो कि अभी भी चल रहा है. देन कम टू मैसिव स्टार्स. मैसिव स्टार्स का मास होता है मोर देन 3 सोलर मासेस. दे आर एक्सट्रीमली हॉट and they glow blue and white. They have very short lifespan, around a billion years as well as 10 million years only. सिर्फ इतना ही लाइफ स्पैन होता है, बट इनका एक्सप्लोजन बहुत ही फैंटास्टिक होता है. दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. एंड साइरस इज अ मैसिव स्टार. इसके बाद स्टार्स का एक्सपेंशन स्टार्ट होता है एंड लो एंड मीडियम साइज स्टार्स बन जाते हैं रेड जाइंट एंड मैसिव साइज स्टार्स बन जाते हैं सुपर रेड जाइंट. यहाँ पर in the red giant expansion, when a star has fused all the hydrogen in its core, जब इसकी पूरी हाइड्रोजन फ्यूज हो जाती है तो इसका न्यूक्लियर रेडिएशन आउटपुट सीज हो जाता है. एज अ रिजल्ट स्टार वंस अगेन स्टार्ट्स कोलैप्सिंग ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी तो वर्क कर ही रही है. एनर्जी जनरेट होती है बाय दिस कोलैप्स हीट्स the core enough that the hydrogen in the surrounding atmosphere can be burnt. This process causes the star outer layer to expand and cool down होता है to just 2500 to 3500 K और इस वजह से फिर ये रेड हो जाता है. अब जो स्टार जो रेड जाइंट बना है इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा होती है. इट कैन स्वेल अप टू 100 to 1000 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ सन. सन की साइज से 100 से 1000 साइज ज़्यादा बड़ा हो जाता है रेड. For small or medium sized stars, after red giant, the next step is planetary nebula. This step is basically when a star's core continues to heat up और जो continuous heat होता है उसकी वजह से temperature बढ़ता जाता है up to 100 million K and so the helium fusion can now take place in the core and outer layer जो होती है वो ड्रिफ्ट हो जाती है and planetary nebula form होता है. The core remain as hot and dense as white dwarf.
Then the next process is becoming white dwarf. White dwarf में क्या होता है? इट इज़ अ कूलिंग डाउन प्रोसेस. वंस अ स्टार आउटर लेयर शेड, जब ये शेड हो जाती है, ओनली अ टिनी कोर बचता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रिमेन रहती है. द स्टार इज कॉल्ड वाइट ड्वार्फ. हियर द मास जो होता है, बहुत सारा मास कंडेंस हो जाता है बहुत ही छोटे से बॉडी में, अराउंड द साइज ऑफ द अर्थ. इतना बड़ा मास इतने से साइज में कंडेंस हो जाता है. द साइज इज वेरी स्मॉल एंड दैट इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेशर exerted by fast moving electrons. So white dwarf gradually cool होता है and then it can convert into black dwarf. Black dwarf are the final stage in the life of a low and medium mass star. They are remnants of white dwarf and formed due to the gradual cooling and dimming, or they burned their remaining fuel. इतनी बुरी तरह से वो अपना फ्यूल बर्न कर लेते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमें दिखना बंद नहीं हो जाती. दिस प्रोसेस विल टेक मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स इसको बनने में लग जाते हैं. इतना ज़्यादा लग जाते हैं कि अभी तक हमारी यूनिवर्स की इतनी एज ही नहीं है. सो इस वजह से कोई भी ब्लैक ड्वार्फ एग्जिस्ट नहीं करता. इट इज़ टोटली थ्योरेटिक. तो ये तो है लाइफ स्पैन एक स्मॉल और मीडियम स्टार का. अब अगर एक मैसिव स्टार है लाइक साइरस, एक मैसिव स्टार है, उसका क्या होता है? तो ये बन जाते हैं रेड सुपर जाइंट. रेड सुपर जाइंट क्यों बनते हैं? क्योंकि कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है. दैट द न्यूक्लियर फ्यूजन कैन अकर इवन आफ्टर हीलियम एग्जॉस्टेड. वहाँ पे हीलियम एग्जॉस्ट हो जाती है तो न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता, बट यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन चलता ही रहता है. और ये तब तक चलता है जब तक कि आयरन नहीं फॉर्म हो जाता, और बाद में कोई फ्यूज़न की प्रोसेस नहीं होती क्योंकि फ्यूजिंग आयरन कंज्यूम एनर्जी रेदर देन रिलीज इट. तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, आयरन रिलीज नहीं करता, और इस वजह से कोई भी फ्यूज़न प्रोसेस नहीं होती. उसके बाद बनता है सुपरनोवा, एक्सप्लोजिव एंड ऑफ अ मैसिव स्टार. दिस एक्सप्लोजन क्रिएट्स हैवी एलिमेंट्स एंड कैन फॉर्म अ न्यूट्रॉन स्टार और अ ब्लैक होल. इस प्रोसेस में क्या होता है? स्टार कोलैप्स करता है इंस्टेंटली कोलैप्स कर जाता है. बहुत सारा ग्रेविटी एक्सर्ट होता है, इनॉर्मस ग्रेविटी एक्सर्टेड ऑन इट्स हैवी आयरन कोर, और इस वजह से इंस्टेंटली कोलैप्स कर जाता है. सुपरनोवा आर सम ऑफ द ब्राइटेस्ट and most violent event in the universe that can basically outshine the lots of galaxies. the entire galaxy को outshine कर देता है. जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं at the background. This type of picture is of a supernova. The energy releases during supernova is so great that a fusion of iron can finally occur. and बहुत सारे heavy elements बनते हैं आफ्टर दिस एक्सप्लोजन. देन फॉर्म होता है, दो चीज़ें फॉर्म होती हैं. फर्स्ट इज़ न्यूट्रॉन स्टार. तो कब बनता है न्यूट्रॉन स्टार? इफ़ द कोलैप्सिंग कोर इज़ 1.4 to 3 सोलर मासेस, दैन इट फॉर्म न्यूट्रॉन स्टार. ये हाईली डेंस, हैवी और ट्रिम बॉडी होती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरली चार्ज न्यूट्रॉन्स. इसमें फोर्स बहुत ज़्यादा होता है ग्रेविटी का, एंड इसकी वजह से जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट पुश्ड इनटू द न्यूक्लियस, एंड वहाँ पर ये कंबाइन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम से टू फॉर्म न्यूट्रॉन. और बहुत छोटे से डायमीटर में, 20 किलोमीटर के डायमीटर में इतना हैवी मास होता है. तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं और हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं इन द यूनिवर्स. देन द लास्ट स्टेप इज़ टू फॉर्म अ ब्लैक होल. ऐसा कब होता है? स्टेलर कोर of more than 3 solar masses. The force of gravity is so strong that the collapse is unstoppable. तो इतना large mass collapses to a point known as singularity. The gravitational force is so strong that nothing can escape it. Even light cannot escape it. इस तरह के phenomenon को बोला जाता है black hole. The gravity is so strong that black hole can even pull neighboring stars and the planets and eat them. और ये इसमें से कोई भी चीज़ लाइक लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन नहीं होता है. हम इसको किस तरह से डिटेक्ट कर पाते हैं? टू ऑब्जर्व दैम फीडिंग द स्टेलर मैटर्स. इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन, एंड सब्सक्राइब फॉर more this type of videos.